Now please see this question. So what you have here, see, they have given like this. They have given a force expression. They have given force. What's equals to what they have given? Alpha into beta e to the power of minus of x square upon, we have here, alpha k t. This is what is given to you. And they are asking the dimensions of beta. When they are asking dimension of beta, you should be knowing dimensions of everything. You should know dimension of f and alpha. Obviously, this entire thing is dimensionless. Right. So dimension of beta will be same as what? Dimension of beta will be same as what? Dimension of force upon what? Dimension of alpha. This is what will happen. Right. Dimension of beta will be same as what? Dimension of force upon dimension of alpha. Right. This is what will happen. So now, let's see here. How will calculate? We know it, right? Dimension of force we already know. We know. We just need to calculate dimension of alpha. Then the question is solved, right? Okay. So with that we'll get from here. What is the concept? Is the function I told you. Inside function, this entire thing should be what? This entire thing should be dimensionless. This entire thing should be what? Dimensionless. ये होना चाहिए. So we can see here that it means what? Dimension of x square should be same as what? Should be same as what? Dimension of alpha kt, like this. X square is what? X is given as distance, so it is just L square. It is L square. Alpha is not known to. This is what we have to find out. K is already given to you in the question. K क्या है यहाँ पे? K is your Boltzmann's constant, right? So you know energy is what? KT. I told you so many times. Energy is KT. If you remember thermodynamics also, you know that for 1 mole it is 3/2 nt, and for molecule 3/2 KT. Exchange energy in thermodynamics, in semiconductor also I've told you KT is energy. KT is what? Energy. So K is what? Boltzmann constant, and T is temperature. So KT is what? KT is energy. KT is what? Energy. Energy तुम्हें पता है? What is energy? Work done. Energy is work done, right? This is energy. This is what? Energy. So work done what? Force into distance. So m mass into acceleration, meter per second square. We got the force into what? Distance. That is what L. You can see L square will cancel from this. So what dimension of alpha you're getting? You're getting dimension of alpha as m minus 1 t2. So you got this. तो बस हो गया. हाँ लिखो है वहाँ पे. You can substitute from here. Right, you can substitute from here now. By the way, okay, you can do it, but the force we are getting here also, which we could have used it here. Because when we write alpha, okay, it's okay, we'll solve now. Okay. So we'll get here, what is force? Mass into acceleration, meter per second square. Mass into acceleration, meter per second square. Upon what? Dimension of this. You will get here m minus 1 into what? t2. So you'll get m to the power of 2, m to the power of 2, L to the power of 1, T to the power of 4. Option number 2. Yeah, this is what you have done. Easy question. This is what you have to understand here. To carefully examine the thing, like e to the power, this will be dimensionless. Right? I told you just now, function entry has to be dimensionless, and the entire thing is also dimensionless. And this is how you solve the question. Now let's see this question. In this question, you have to frame equations. You have to frame equation, and then you have to solve. Okay. So let's see what's the meaning of framing an equation here. You need to frame the equation, then you have to solve the question. Okay, see here. They're asking you that, see, this mu by E, this is mu by epsilon, this ratio, you have to express. Any function is dimensionless. When it is sine theta, log x, e to the power of x, any function like this function sine, log, e to function, this entire thing will be all are dimensionless. Even the entry that you put inside this will be dimensionless. The function output is dimensionless, input is also dimensionless. Okay. Okay, so now here is given that this mu by epsilon, this particular thing. This depends upon what? This depends upon r as well as time t.
But how they depend is not given to you. They're asking what is dependency. So you can write like this. What you can do here, we can write, okay, mu by epsilon is equals to some power of R, let's say A, and some power of B. This is what you have to solve. You have to find the values of A and B. How we find the values of A and B? We write the dimensions of both left hand side and right hand side, and then we solve the question. ये तरीका होता है, ठीक है ना? You have to write the dimension of left hand side and right hand side, and then we'll solve the question. So just now we have solved mu and E, right? Mu and E. No, mu and epsilon, sorry, mu epsilon, okay? So we'll see, like, I don't remember this formula at this moment. If you ask me, so I'll derive it in that case. What I can do? I will derive it. If you know it, obviously you can use it. Let's say I don't know it, so I will derive it. Okay, again I will derive it. So what do we have here? So to solve this question, what we need now? We should be clearly knowing the dimensions of mu by E. Mu by E, this should be known to you. Dimensions of R, that should be known to you. Dimension of time should be known to you. And then only we can find the values of N. This is what we have. Okay? So we'll calculate mu by E. So again, same formula. We will start with, first of all, epsilon naught, so we know it very well. Epsilon naught we will know, okay, and then, okay. So epsilon naught we can calculate mu naught also, right? Epsilon naught will calculate using the same formula. F equals to what? K, Q1 into K is what? 1 by 4 pi epsilon naught. Okay, you solve this, okay, we can calculate. Mu naught also I told you which formula you have to use. You have to use this. C square equals to what? C is basically 1 by root of mu naught into epsilon naught. And from there you can calculate the formula of this. Okay. And then you can solve the question. Or you can convert this entire thing into single. That is also possible. That is also one way I told you. Whenever they gave you ratio. What we can do here is, we can use this second. I will try to solve it fast using this approach. What we can do here is, I will try to convert this in terms of epsilon. How we can do this? We know that C square is what? C square is 1 by mu naught into epsilon. Dimension will remain same. Mu is for some other medium, right? Epsilon naught is for air, but dimension will remain same. So from here I can see that your mu naught will be equals to what? 1 by C square epsilon naught square, right? So if I substitute back here, what will happen? I'll get here 1 by C square into what? I'll get epsilon naught cube. I'll get something like this. Okay? So I'll calculate dimension of epsilon naught. How we get? The same thing, force is what? Mass into acceleration, meter, mass into acceleration, meter per second square. Equals to what? 1 by dimension of epsilon naught into what? A square t square. A square t square you have it. And then by L square. By what? L square. So epsilon naught will go up. So dimension of epsilon naught will equals to what? This will come up. So you'll get m to the power minus 1. L will come down. L cube. L cube. So we'll get here L to the power of minus 3. Right? And then t to the power 4. So you'll get t to the power 4 a square. This is what you get. This you have to multiply c square meter per second square. So meter per second. T to the power. So you have to multiply with this. So at the end, this dimension will come. This dimension will come out to what? This dimension will come out to be m to the power of. यार मैं कोई गलत कर दिया. एक सेकंड. See, we know that speed of light c is given as 1 by root of a naught square. Okay, फिर से कर लेता हूँ यार. 1 by mu naught into epsilon naught. So c square करने पे क्या हो जाएगा? 1 by mu naught into epsilon naught. Into what? Epsilon naught. Whenever you get ratio, I try to convert in terms of mu. This is the strategy that I follow, right? So what we'll do here, we will try to convert mu naught as what? Mu naught as 1 by c square into epsilon naught, right? So I'll put the value back here. I'll put this value here. So mu, so I'll get what? If I do this, I'll get here, अच्छा cube बना लिया सही भाई. So I'll get c square into what? Epsilon naught square I will get, right? This is what we have. So इसको solve करना हम लोग को. Epsilon naught we know how to solve. Force equals to force, mass into acceleration, meter per second square. You got the force here equals to what? 1 by dimension of epsilon naught into what? Q1. So you will get here a square t square. ये आ जाएगा a square t square by what? L square. You will get this. ठीक है ना? So from here I'll get dimension of epsilon naught as what? M तो रहा ही L cube. Sorry, m to the power minus 1. You get here m to the power of minus 1 here, right?
and then you will L to the power of minus 3 t to the power 4 a square. yes, ये बन जाएगा. ठीक है. And this you have to square. पहले इसको square कर लो because epsilon square is there. N to the power minus 2 it will become into what? L to the power minus 6 it will become L to the power minus 6 t to the power of 8 and then a to the power 4 it will become. And this you have to multiply with c. C is meter per second. L square t square we have to multiply. So what will get here? Denominator I'll get n to the power minus 2. L to the power minus 6 will become L to the power of minus 4 and t to the power of will become 6 it will become and a to the power 4. Now this will go in the numerator. So what is dimension of this you got? Dimension of this you are getting as m to the power of minus 2, L to the power of minus 4. So it will become plus, plus, plus. And then here you will get t to the power of minus 6. And you are getting a to the power minus 4. पहले ये कर लिया. ठीक है ना? This is what you have to do first. ये कर लिया. Now after getting this we have to find the dimension of resistance and temperature. So resistance when you use, you can use V equals to IR. V equals to IR, right? And we get the resistance here. And T is already given as what? Time. ठीक है ना? V equals to IR. तो यूज करते हैं यार. ठीक है ना? तो RT तो कहीं यूज नहीं होता ना. फॉर्मूला में नहीं आता, नहीं RT नहीं आता. ठीक है, तो R को यूज करना पड़ेगा. वर्क डन. Again work done we have to calculate. So force, work done by charge, work done by charge. So work done is force into displacement, right? L by charge. Charge is IT. So I'll get here, I'll get a square into t. I'll get, so force I have to do. Force कितना हो जाएगा तुम्हारा? Force will be equals to mass into acceleration. Mass into acceleration meter. So L square will become, because L is in meter per second. Meter per second square. So we'll get this, right? Upon you have what? A square t. So what I'll get here? I'll get here, this will convert to m L to a minus 2 t minus 3. This will get m L to t minus 3 a minus 2. ठीक है, ये भी आ गया. वो तो टाइम में तो यहाँ लिख दो फिर. You write here m L to a minus 2 t minus 3 to the power of a and then t to the power of b. Now we have to equate the powers, right? Both the sides to get the values of a and b. By the way, you have only two unknowns here, a and b, and you have many questions, right? So we have to carefully see like which thing we will use to solve the question. देखो कैसे करेंगे इसको. मैं तो इसको हटा देता हूँ सारा का. सारा हट गया, हटा देता हूँ मैं. ठीक है ना? ये सारा हटा देता हूँ मैं. The question converts to what? I'll remove everything now. So now the question converts to this part there. इधर साइड क्या आ गया तुम्हारे पास? यू आर गेटिंग हियर m टू द पावर ऑफ 2 L टू द पावर ऑफ 4 t टू द पावर ऑफ minus 6 a टू द पावर minus 4. ये आ गया इधर लेफ्ट हैंड साइड में आ गया. ठीक है ना? और राइट हैंड साइड में क्या है देखो जरा. व्हाट इज द पावर ऑफ m? यू हैव एन m here, not have m here, right? So you get m to the power of a. M to the power of a. Straight away you can say what? A is 2. स्ट्रेट अवे एज 2. सही है, कोई दिक्कत नहीं है. और देखो जरा, L का पावर क्या है इधर? L का पावर 2 है. L का पावर क्या है इधर? 2 है. L का पावर 2 है, there is no L. So L to the power of 2a you have. अब ये तो मुझे B चाहिए ना, मुझे B चाहिए. तो B का मुझे टाइम देखना पड़ेगा T. We have a T to the power minus 3a and you will get B. Minus 3a plus B. Minus 3a plus B equals to what? What is the time here? Minus 6 you have here. I'll put the value of a as what? 2 here. So I'll get minus 6 will cancel. I'll get B as 0. I'll get B as what? 0. B as 0. I'm getting only 2. Means what? R square is the answer for the question. Hope it's clear to all of you. समझ में आ रहा है? ठीक है ना? इसमें समझ में क्या किया आपने? आपने फॉर्मूला फ्रेम किया फिर नॉर्मल. ऐसा आपने क्लास 11th में भी किया है. Hopefully if you remember, right? आपने ऐसा काम 11th में क्वेश्चन में करते थे हम लोग एनसीईआरटी बुक में. ओके, नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन. अब देखो ये भी क्वेश्चन आसान है. 1 2 3 4. Okay, now why I'm solving all these questions? Because I remember I have not discussed this in detail when I was teaching. I just taught the theory and few questions. Okay, today I discussed all that category, everything, so that now you will be comfortable. The question there क्या है? If A, B, C, D are 4 different quantities having different dimensions, none of them are dimensionless.
ओके, हैव डिफरेंट डायमेंशन मींस पहले ही बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी, इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी। ऐसा क्वेश्चन है पहले लिख रहा है और सब सेम भी नहीं है, ठीक है ना। और ये ऐसा बोलता है कि ए डी इज एन, एक चीज और बोल रहा है तुम्हारा कि ए डी इज इक्वल टू वट सी एल एन बी डी, ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है ना। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो गिवन टू यू। तो यहाँ से तो समझ में आ रहा है, क्लियर क्या कि बी डी इज डायमेंशनलेस, बी इंटू डी इज वोट डायमेंशनलेस, बी डी इज बिकॉज एल एन ना डायमेंशनलेस, ये बात समझ। और दूसरा क्या समझ रहा है, अच्छा डायमेंशन ऑफ ए डी विल बी सेम एज डायमेंशन ऑफ सी, दिस टू थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट। अब क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द इज नॉट मीनिंगफुल मींस डायमेंशनली इनकरेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो ये तो सीधे आंसर आ गया आपका ए और सी आर डिफरेंट डायमेंशंस, राइट। You cannot subtract two different dimensions. Straight away this can be ruled out. You got the answer to the question. अभी आगे और देख लेंगे कोई दिक्कत क्यों सही है सब, that's a different story. But then this is why it is wrong. This is very clear because they have given that there are different dimensions. So you can't subtract different dimensions. You have to add, subtract things. You can multiply, divide with different dimensions, but add and subtract you have to see the dimensions should be same. So A and C you cannot subtract because A and C are of different dimensions. तो ये तो straight away ruled out हो गया. D is straight away ruled out. आंसर आ गया आपका, क्वेश्चन इज सॉल्व, ठीक है ना। बट यू कैन क्रॉस वेरीफाई व्हाई दे आर सेम, व्हाई विद सी हियर ए बी सी, ए एंड बी सी शुड हैव, वी हैव चेक फॉर ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर ना। सो बी सी कहां से लाए हम लोग, देखो ए का डायमेंशन बी सी, सो बी सी आई विल ट्राई टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ए। सो बी सी कहां है मेरा, इधर मेरा डी है, इधर मेरा ये है, बी डी है, सी है। हाँ यहाँ से कर सकते हैं ना, देखो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, विल टेल दैट डायमेंशन ऑफ बी फ्रॉम हियर वी कैन अंडरस्टैंड दैट डायमेंशन ऑफ डी विल बी सेम एज व्हाट 1 बाय डायमेंशन ऑफ बी। यहाँ से समझ में आता है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, विल गेट फ्रॉम डायमेंशन ऑफ ए बाय डायमेंशन ऑफ बी विल इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ सी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यू कैन सी बी इंटू सी गिव्स यू व्हाट डायमेंशन ऑफ ए, ये भी सही हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें आते हैं ए बाई बी। अच्छा ए बाई बी मुझे चाहिए, ए बाई बी कहाँ से मिलेगा मुझे, ए बाई बी। अच्छा ए बाई बी तो तभी देखा, ए बाई बी सी आ गया, ये भी सही है, ए बाई बी जो सही, ये भी सही हो गया, ठीक है ना। देन यू हैव सी बाई बी डी, ए इंटू डी। सो यहाँ देखो, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं ए इंटू डी इंटू डी, ठीक है। अच्छा ये बोनस क्वेश्चन था यार, ये भी डायमेंशन इनकरेक्ट है, ये बोनस क्वेश्चन था बिकॉज बोथ आर इनकरेक्ट है। क्यों, देखो ए इंटू डी, सो भी नो इश्यूज, ऐसा वो क्वेश्चन होता है आपने सिर्फ टिक किया तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट इफ यू डोंट हैव टिक, इफ यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग, इफ यू टेक एनीथिंग हियर यू विल गेट द आंसर, बट यू शुड टिक द क्वेश्चन, दैट्स द थिंग, otherwise they will not give the marks. So because this is also dimensionally incorrect, let's see how. You have AD into D by C, you have it. AD is what, AD, A into D is dimension of C only, so it will cancel, so it is only D, there is only D left, the left is only D here, okay. BD is already dimensionless, so C and D are different dimensions, so you can subtract different dimensions, right? Therefore this is also dimensionally incorrect, ठीक है। क्लियर है सबको, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन है स्लाइटली वियर्ड बट नॉट डिफिकल्ट, ओके। थोड़ा लेंदी हो जाएगा वो बात अलग है, लेकिन ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस को मैंने 3 क्वेश्चंस को नीचे में रखा है यहाँ, ठीक है। एक तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा वियर्ड है, सब क्वेश्चन थोड़ा से अजीबो गरीब टाइप के, और ये आते नहीं आजकल, देखो ये पहले आते थे 13 में आया, 14 में, 15, अब नहीं आता। अब जो रिसेंट ट्रेंड है ना वो आसान क्वेश्चन का है, ये आता था पहले। ये जो क्वेश्चन दिखा रहे हो ना ये वाला, ये क्वेश्चन मोस्टली अब नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन आने भी नहीं चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत समय लगता है, आपके पास समय बहुत कम देते हैं वो। इफ दे आस्क दिस क्वेश्चन, दिस इज रियली अ फुलिश एक्ट, दे शुड नॉट आस्क दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं कैसे सॉल्व होता है ये, प्लीज। ये क्या दिया यहाँ पे, अ बीकर कंटेन्स अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी बोल रहा है, स्पेसिफिक हीट बोल रहा है, ठीक है ना, और विस्कोसिटी बोल रहा है, द बीकर इज फिल्ड टू अ हाइट ऑफ h, ये सब की बात ही हो रहा है। एक टर्म ये हो गया, एक टर्म स्पेसिफिक 8s हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया, 4 हो चुका है अभी तक, 1 2 3 4, ऑलरेडी वी हैव सीन 4 डिफरेंट व्हाट यू कॉल टर्म्स है। टू एस्टिमेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर सेकंड, Q by A is the rate of heat transfer, ठीक है, by convection, ठीक है। When the beaker is put into a hot plate, the sudden produces that should be, okay। तो ये बोल रहा है कि वही सेम क्वेश्चन हो गया ना, ये Q by A इक्वल टू क्या लिखोगे, ईटा टू द पावर ऑफ A, फिर क्या लिखोगे, S इंटू डेल्टा थीटा बाई H का डायमेंशन B लिखोगे, और फिर यहाँ क्या लिखोगे, 1 बाई rho g to the dimension of C, and then you will find the values of A, B and C, and then you will take the answer,
बस में तो सेम क्वेश्चन हो गया ना, एक समझ में ना, कैटेगरी सेम हो गया भाई। ओनली थिंग इज दैट इट विल टेक टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन, बट फॉर्मूला केजी सब तो दिया हुआ है तुम्हें क्वेश्चन में, यहाँ देखो दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, विस्कोसिटी नहीं दिया, तुम्हें निकालना पड़ेगा। You know that if you have two layers of fluid, the force, a drag force that is there, this force is what, minus of eta into area of cross section into what, कुछ तो था तुम्हारा d by dx ऐसा कुछ था, इससे भी calculate the formula of eta and that will substitute here, and then again we'll compare the values and we'll get the values of a and b c। ये सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना, दिस यू कैन सॉल्व। इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, obviously ऐसे क्वेश्चन आएगा तो should not solve in the actual paper, but right now for practice you can definitely solve and check out कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। by the way when you solve you will get question option number D as the answer for the question, but तरीका समझ में आ रहा है सबको ना क्या करना है यहाँ पे। I'm not solving because we don't have much time here, but I'm telling you the method। बस मैं ये भी क्वेश्चन उसी कैटेगरी का जो भी पीछे फॉर्मूला फ्रेम करना है, क्वेश्चन फ्रेमिंग फॉर्मूला, बस समझ आया आपको, ठीक है। ये बड़ा सा यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, अब इसे एक फॉर्मूला फ्रेम कर फिर सॉल्व कर। अब देखो ये कैटेगरी क्वेश्चन क्या है, देखो ये तो बहुत ही गंदा है, ये भी गंदा है, ठीक है ना, अच्छा नहीं है। पिछला गंदा इसलिए था, पीछे क्वेश्चन फ्रेम कर दोगे बट कैलकुलेशन बहुत इंटेंसिव हो जाएगा, इसलिए वो गंदा था, ठीक है ना। इसका गंदा होने का रीजन कुछ और है। देखो गंदा होने का रीजन क्या है यहाँ पे, सी from the following combination of physical constants through the usual symbols only coming that would have the same different, okay, तो क्या बोल रहा है, the only that would have the same in different units, it means what dimensionless, क्या बोल रहा है कि सारे डायमेंशन होने चाहिए, डायमेंशनलेस होने चाहिए तभी कौन सही होगा, that's the meaning, it should be what dimensionless। तो इसमें चेक करना पड़ेगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना यार प्रॉब्लम क्या है कि ये ई स्क्वायर है, ये जी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्क्वायर है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, तुम्हें हिट करना पड़ेगा फॉर्मूला बना के, एक फॉर्मूला 2-3 फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और ये टर्म को क्रिएट करना पड़ेगा। पंगा इसमें ही है। जैसे देखो मुझे पता है चार्ज स्क्वायर बाई एप्सिलॉन, ये हो सकता है कहां से होता है, फोर्स से। 2 इलेक्ट्रॉन ले लो तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन फोर्स क्या होता है, ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या कर सकते हो, यू कैन क्रिएट ई स्क्वायर बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका जो डायमेंशन होगा ना that will depend upon what dimension of force upon r square। चलो ठीक है, एक समझ में आ गया। अब ये पार्ट तो खत्म हो गया, ये पार्ट हटा दो अभी। g इंटू एम स्क्वायर, ये भी आ सकता है कहां से, अगेन फोर्स, व्हाट इज फोर्स, g इंटू मास से 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, एम स्क्वायर बाई व्हाट, यू विल गेट r स्क्वायर हेयर भी। तो यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा, डायमेंशन ऑफ g इंटू एम स्क्वायर, दिस विल सेम एज व्हाट, डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू r स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू r, इस पर डिपेंड करेगा ये। समझ में आ गया ना, ऐसा कुछ हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दोनों का रेशियो, इसका रेशियो, I'll write dimension of force by what, dimension of r square by dimension of force, force into r square आ गया। अच्छा ये भी तो फोर्स इंटू आर स्क्वायर, ये भी फोर्स इंटू आर, तो ठीक है, दोनों कैंसिल हो गया ना, दोनों कैंसिल हो गए, वन आ गया, आंसर दो क्वेश्चन आ गया। बट ये फॉर्मूला फ्रेम कर पाओगे तो ना, बस में याद हो कितना गंदा है, इसमें सी को यूज करना पड़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट को, फिर सॉल्व करो। तो आई विल नॉट रिकमेंड कैसे क्वेश्चंस आने चाहिए, यदि आया तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, उसके लिए आपको फिर से बहुत फोकस होना पड़ेगा, ठीक है ना। इट्स अ मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो मैंने लिया लास्ट में। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, आने भी नहीं चाहिए, लेकिन आएंगे तो ऐसे ही सॉल्व हो, और कोई तरीका इसमें नहीं है। आपको डिफरेंट फॉर्मूलाज को पिक करना पड़ेगा और ये वाला फॉर्मूला बनाना पड़ेगा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो और देखो यार, डोंट वरी, आई एम नॉट टेकिंग द टेस्ट टुडे बिकॉज आई नो दैट आपको समझ चाहिए, मैं जितना हड़बड़ा के टेस्ट नहीं लूंगा, क्योंकि ये फाइनल टेस्ट नहीं है, हमारे यहाँ पे काम पूरा होना चाहिए। तो मैं आज का समय भी दिया आपको, कल का समय दिया, लेकिन आप आज और कल में मैं सारा रिवाइज भी करा दूंगा ऐसे, ठीक है ना। ऐसा नहीं छोड़ रहा हूँ, आपको छोड़ दे रहा हूँ पूरा कि नहीं आप जाके ब्लाइंडली लिख दो कल पेपर, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। मैं अभी थोड़ा सा ब्रेक में कुछ नाश्ता करके फिर से मैं क्लास लूंगा। अभी आगे जो 1D 2D है वो भी कंप्लीट कर लूंगा, और रात में आज फिर से क्लास लूंगा। वहां पर मैं आपको वो स्क्रू गाउज, वर्नियर कैलिपर्स, एरर्स, वो भी आज ही फिर से रिवाइज कर दूंगा। पूरा रिवाइज हो गया। अब कल पूरा दिन भर तुम लोग बनाओ, कल रात में टेस्ट रखूंगा 9 बजे। मैं रात में कल नहीं पढ़ाऊंगा, कल रात में 9 से 11 टेस्ट रखूंगा, ठीक है ना। ऐसे कर दूंगा, आप आराम से, आपके समय, आपको प्रेशराइज नहीं करूंगा, लेकिन चीजों को कंप्लीट करना है, ये समझो बात को, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, देयर इज नथिंग टू प्रेशराइज एट दिस मोमेंट, बट सीखना है चीजों को, आराम से तो नहीं रहेंगे। और क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा रहेगा, टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने क्वेश्चन अच्छा सेट किया है, आपको पहले बोल रहा हूँ, क्वेश्चन का लेवल सही में बहुत अच्छा रहेगा,
आपको सारे पढ़ के जाओगे तभी बनेगा, वो आसान क्वेश्चन नहीं है। और ये एक्चुअली में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके फिटजी में, एलन कैचर टेस्ट में, जहाँ की फुल एंड फुल नहीं आता है। आई टेल यू, सी इफ यू स्कोर इवन 50% ना, 30%, 35%, 50%, 40%, देन ऑल्सो विल बी एबल टू क्वालिफाई। वही लेवल का क्वेश्चन रहेगा, इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, बहुत अच्छे से लिखना है वहाँ पे। ओके, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस क्लासेस, बिकॉज आई नो दैट इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। तो इसलिए मैं चीज़ें कंप्लीट कर रहा हूँ अपनी तरफ से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं, हड़बड़ा कोई एग्जाम मत लिखना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। नाउ अगेन अ वेरी वेरी हॉरिबल क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट हॉरिबल क्वेश्चन। ये सबसे घटिया क्वेश्चन होता है सर। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग द क्वांटिटी has dimensions as well as correct formula of the order of atomic size। तो पहले तो ये बोल रहा है कि किसका डायमेंशनल फॉर्मूला तुम्हारा रेडियस के बराबर जाएगा, मतलब लेंथ के बराबर क्या जाएगा, एल के बराबर आ जाएगा। तो सॉल्व करो सबको, देखो चेक करो कौन एल के बराबर है। पहला तो ये काम करना है। दूसरा क्या, ऑफ द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का रेडियस क्या होता है, 10⁻⁻, ऐसा होता है, 10⁻�9 साइज होता है। 10⁻15 तो उसका होता है न्यूक्लियस साइज का, आर इक्वल टू आर नॉट लिखते हैं ना, आर इक्वल टू आर नॉट इंटू दी पावर। इस साइज छोटा होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है, 10⁻9 नहीं होता सर, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ऐसा होता है, एमस्ट्रॉन्ग में ऑर्डर में होता है। और ये होता है फेम्टोमीटर का ऑर्डर में, ठीक है ना। ये होता है न्यूक्लियस साइज होता है इस ऑर्डर में, और होता है एटॉमिक साइज इस ऑर्डर में, ठीक है, ऐसा होता है। बात क्लियर हो रहा है। तो ये पहले आपको डेटा याद होना चाहिए कि ऐसा होने वाला और ऐसा होने वाला, ये पहले आपको अच्छे से याद होना चाहिए, पहला चीज ये। और दूसरा चीज क्या होता है, देखो यहाँ पे, यहाँ थोड़ा गौर करोगे तो ये जो फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला सेम ही है, उल्टा दिया हुआ। तो इसको वेरीफाई किया तो इसको नहीं करने का, इसको वेरीफाई किया तो इसको नहीं करने का। बात समझ गया ना, बात सही है गया। अब ऐसा कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं हमारे पास, ये फॉर्मूला मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। देखो ये तो बन जाएगा हमारा फॉर्मूला, अभी पढ़ा है कैसे बनाया जाता है ये। एमसी स्क्वायर तो भाई एनर्जी है, ये भी हमें पता है, तो बस हो तो गया यार। ये बेसिकली क्या बोल रहा है, फोर्स बाय एनर्जी। फोर्स बाय एनर्जी, फोर्स बाय एनर्जी क्या होता है, फोर्स बाय एनर्जी तुम्हारा होता है यहाँ पे, एक सेकेंड यार, इसका आंसर देख लूँ तो उल्टा सीधा मैं बता दूंगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो फोर्स ही होगा ना, के क्यू वन क्यू टू बाय का फोर्स, एनर्जी, हाँ एनर्जी, एनर्जी इज वर्क डन, राइट, वर्क डन का फोर्स इनटू। तो इसका लेंथ कैसे आएगा, डायमेंशन इसका, इसका डायमेंशन एफ क्या होता है, एफ, ये तो एफ ही हो गया ना, क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अच्छा आर स्क्वायर छूट गया नीचे ना, अच्छा हाँ हाँ, आर स्क्वायर नहीं था ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और, यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है, ये फोर्स होगा लेकिन डायमेंशन ऑफ एल स्क्वायर भी डालना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। एल स्क्वायर नहीं ना है, सॉरी सॉरी, उल्टा उल्टा बोलते हैं, मैं देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो है ना, ये पूरा का पूरा, ये क्या है, फोर्स इनटू एल स्क्वायर है ये वाला। और ये क्या है, एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, फोर्स इनटू एल होता है। ये कैंसिल हो गया, ये तो एल आ गया, ये क्या एल आ गया, ये तो एल हो गया, ये तो एल हो गया, तो पक्का ये तो गया काम से, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। इसमें भी देख लेते हैं, इसमें क्या है, यहाँ पे क्या दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। उल्टा किया इसका ना, उल्टा किया तो मतलब क्या, इस बार एफ यहाँ पे होगा, इस बार एल स्क्वायर यहाँ पे होगा। एम तो मास है, एम तो मास है। एच क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट। तो प्लांक्स कांस्टेंट का ई को एच नहीं बोलते हैं, ई को क्या एच नहीं बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ई, इसको ई के टर्म में लिख सकते हैं, एनर्जी के टर्म्स में, एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंसी हो गया, तो एच का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एच का डायमेंशन ई बाई फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी सेकंड होता है, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड ऊपर जाए, सेकंड स्क्वायर तो हो जाएगा, टी स्क्वायर तो हो जाएगा यहाँ पे। और एनर्जी फ्रीक्वेंसी होता है मीटर पर सेकंड, एच स्क्वायर, ठीक है। एनर्जी होता है फिर से फोर्स इनटू व्हाट, एल। यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, यहाँ तो लिखा हुआ है कि एल है सही, क्या गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड अच्छे से करता हूँ इसको। फोर्स क्या था, ई स्क्वायर ले सकते हैं यहाँ पे, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू व्हाट, आर स्क्वायर। ई स्क्वायर उल्टा बोला ना, ये नीचे और ऊपर, ये नीचे और ये ऊपर, तो हो गया 1/f इंटू आर को बोलते हैं एल स्क्वायर, ठीक है, ये तो सही है, नीचे आ गया। मास है, मास तो ठीक है, मास तो तुम्हारा होता है केजी में, एम होता है, इसको एम लिख दिया, इसका भी कोई दिक्कत नहीं। एच, एच प्लांक्स कांस्टेंट ही होना चाहिए, तो ठीक है यार। ई इक्वल टू एच न्यू एक फॉर्मूला होता है, वहां से निकाल सकते हैं इसका, ई इक्वल टू एच न्यू। न्यू का फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी 1/सेकंड, तो सेकंड टी ऊपर चला गया, तो टाइम तो यहाँ तो आ ही गया एच में। और एनर्जी क्या होता है, वर्क डन, एम मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन, मीटर
पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें तो एनर्जी इक्वल्स टू फोर्स इंटू फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एक और एल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे टी कैंसिल होगा यार, क्वेश्चन दिया हुआ कैसा सही है ये, ठीक है ना। क्या करते हैं ना, एनर्जी आ गया ना तो एनर्जी ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। एनर्जी को हम लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस, और ये फ्रीक्वेंसी तो बाई सेकेंड, 1/सेकेंड, 1/सेकेंड हो जाएगा, टी हो जाएगा एफ एल टी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर आ जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा, और आ जाएगा तुम्हारा टी टू द पावर ऑफ यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो एफ एफ ये तो कैंसिल हो गया, एक एफ भी कैंसिल हो गया। अभी टी का देखते हैं, तो इसका क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन मतलब क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी टू दी पावर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एम आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, एल आ गया, तो ये दोनों सही, तो ये गलत हो गया। अब इसके बाद क्या करना, सारे वैल्यूज तुम्हें डालने पड़ेंगे, ई के वैल्यू डालो, सबके डालो, फिर कैलकुलेट करो, ठीक है ना। तो बहुत गंदा आता है, सो सॉल्व करने पे एक 2.8 इंटू द पावर -15 आता है, ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये तो इसमें न्यूक्लियर जैसे, और ये वाला आता है तुम्हारा 2 इंटू 10 टू द पावर -9 आएगा, तो ये सही हुआ, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं लिया था ऐसा क्वेश्चन, कैसे करोगे यार, इतना कैसे सॉल्व कर सकते हो तुम, इम्पॉसिबल है। तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ना होता है, अभी मैं समझा दिया ये कैसा बनता है, अगली बार ऐसा क्वेश्चन गलती से आ गया तो छोड़ने का, उधर दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है। क्या लिखे हो, वाई वी फाइंड द डायमेंशन ऑफ एल, मैंने डायमेंशन ऑफ एल को छोड़ दिया ना, एल को लेंथ को छोड़ दिया, एल को कहाँ निकाले, कहीं निकाला मैं, एल लेंथ है, यहाँ पे एल लेंथ है, वी आर नॉट फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ एल, एल मतलब लेंथ है, एल छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे एल में डायमेंशन ऑफ एल छोड़ दिया, डायमेंशन एल है वो लेंथ है। ओके चलो अभी मैं ब्रेक लेता हूँ, 15 मिनट का है, 15 मिनट फिर मिलते हैं, ठीक है ना। चलो आफ्टर 15 मिनट्स आई विल स्टार्ट अगेन।